Okay friends, so let us start with this new chapter of reconciliation. It is a very easy chapter, you will enjoy it, and once you're set with the procedural part, it will be really easy, and you can easily add 8 marks from this particular chapter, right? So with this said, let's begin with this chapter. Now, what is a reconciliation? In simplest words, reconciliation is when there is a difference between two things, you have to reconcile it. Like if there is a, you used to do it in foundation as well. Okay, when there is a difference between balance as per cash book and balance as per passbook, you prepare a bank reconciliation statement. Right. Now here, also reconciliation statement needs to be prepared when there is a difference between two. Okay, which two? So let's start with this. So as I would have said in cost sheet also, again I am repeating, if you are not done with cost sheet chapter yet, if you have not seen the videos of cost sheet chapter, I would request you, first of all, you look at those videos of cost sheet chapter, and then only move this chapter forward, because this chapter will be based on the knowledge, on the concept that you would have got during the cost sheet chapter. Now, we say that there are two types of main accounting system. One is finance and one is costing. So costing and finance. Now both of them have the procedural part very similar. ये मैंने आपको कॉस्ट के टाइम में भी बताया था कि फिनांस है, तो फिनांस का सबसे पहला स्टेप जर्नल, कॉस्टिंग का भी सबसे पहला जो स्टेज होता है दैट इज अ पासिंग जर्नल एंट्री. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज होता है जर्नल का लेजर पोस्टिंग. कॉस्टिंग में भी हम करते हैं जर्नल का लेजर पोस्टिंग. फिर इसको कास्टिंग करना, मतलब बैलेंसेस फाइंड करना, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड लिखना, एंड वो सब, दैट इज योर कास्टिंग. इसके हिसाब से यहाँ पे बनता है ट्रायल बैलेंस, इसके हिसाब से यहाँ पे बनता है ट्रायल बैलेंस. फिर पीएनएल बैलेंस शीट, यहाँ पे कॉस्टिंग पीएनएल, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट शीट. नाउ टू कीप द थिंग सिंपल फॉर यू गाइस, अगर आपने समझो दोनों सिस्टम रखी है और आपने दोनों के हिसाब से काम किया, दोनों के ऊपर काम किया, और फिनांस का प्रॉफिट आता है 10 lakhs, और माय फ्रेंड्स कॉस्टिंग पीएनएल का प्रॉफिट आता है 9 lakhs. फिनांस का प्रॉफिट आया 10 लाख, कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया 9 lakhs. देन द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि विच प्रॉफिट इज राइट, इनमें से कौन सा प्रॉफिट सही है? तो जवाब है दोनों प्रॉफिट सही है, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंसिपल फंडामेंटल डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आते हैं, जिसको हमें सॉल्व करना होगा, और वो डिफरेंसेस को टैली करना, उसकी जो प्रोसेस है उसे ही हम कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंसेस एज फार एज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज कंसर्न. सो फ्रेंड्स, प्रिंसिपली टॉकिंग, देयर आर 4 main reasons because of which the difference between profit as per finance and profit as per costing arises. 4 main differences because of which profit as per costing and profit as per finance differ. What are those reasons, sir? The first reason is so यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कि reasons for
डिफरेंस क्या रीजंस हो सकते हैं? तो सर पहला जो रीजन है जो हमने कौशिक के दरमियान पढ़ा था, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर आपने कौशिक का चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज गो एंड सी दोज वीडियोस, बिकॉज जब तक आप कौशिक के वीडियोस नहीं देखोगे, यू नो, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, राइट? सो फर्स्ट, the first reason for differences that we can find out is financial incomes and expenses. You know, as we have learned during the Kaushik chapter, there are plenty of financial incomes and expenses that are not being recorded in Kaushik. Plenty of, like, if I give you examples, interest received, dividend received, your income tax, donation, profit or loss on sale of fixed asset, profit or loss on sale of investments, and so on and so forth. All these expenses, which are called financial incomes and expenses, they are recorded in finance, but they are not recorded in cost. Now the question that arises is, if finance records, costing doesn't record it, who is right among them? कौन सही है? Then answer is both are right. It is not like right or wrong. Both of them are right. ठीक है? So, because finance को ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए, क्योंकि finance का ultimate purpose है to find profit or loss. So finance has to write this. But at the same time, costing इन चीज़ों को नहीं लिखता है, क्योंकि costing का purpose है to find the cost of product. हमने कौशिक के दरमियान पढ़े थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट मेरे भाई बहन इसलिए बनते हैं कि आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करनी है, आपको वहां पे प्रॉफिट या लॉस ओवरऑल एज अ कंपनी फाइंड नहीं करना है। तो अपने ऑब्जेक्टिव से हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कॉस्टिंग सही है जब वो ये चीजें नहीं लिखता है, और फाइनेंस सही है जब वो चीजें लिखता है। तो इन वजह से डिफरेंस आ सकता है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव्ड 10 लाख या 1 लाख, व्हाटएवर अमाउंट डजंट मैटर, अगर आपने लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव्ड 1 लाख, ये फिनेंस ने लिखा होगा, कॉस्टिंग ने नहीं लिखा होगा। तो दोनों में से सही कौन? दोनों सही। और इस रीजन से, इस वजह से इन दोनों के बीच डिफरेंस आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा रीजन, अभी दूसरा रीजन जो हम यहाँ पे कॉस्टिंग और फाइनेंस के डिफरेंस के बीच आने का पढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक वैल्यूएशन। जैसा स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से कॉस्ट और फाइनेंस में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि फाइनेंस का रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। कॉस्टिंग का क्या रूल है, सॉरी फाइनेंस का क्या रूल है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। जबकि यही बात कॉस्टिंग कहता है कि भैया ऑलवेज एट कॉस्ट। व्हाट यू डू? ऑलवेज एट कॉस्ट। तो इसके रूल्स क्या होंगे? जैसे एग्जांपल दें कि भैया एक फिनिश गुड स्टॉक है,
उसका कॉस्ट है 10 लाख, मगर एनआरवी है 9 लाख। तो इसके चलते क्या होगा, कॉस्टिंग अपनी बुक में 10 लाख लिखेगा, क्योंकि कॉस्टिंग का रूल है सर ऑलवेज एट कॉस्ट। बट वही जगह पे फिनांस जो है वो 9 लाख लिखेगा, क्योंकि फिनांस का रूल है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। राइट फ्रेंड्स, तो इस रीजन की वजह से भी वापस कॉस्ट और फाइनेंस के बीच डिफरेंसेस आ सकते हैं। देयर कैन बी डिफरेंस बिटवीन दिस टू। एंड अगेन, अगर फाइनेंस ने 9 लाख लिखा, कॉस्टिंग ने 10 लाख लिखा, दोनों में से कोई गलत नहीं है। अपने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से तो दोनों सही है, बोथ ऑफ देम आर राइट। ठीक है, सो दैट्स अ थर्ड रीजन, दैट इज स्टॉक वैल्यूएशन। तीसरा रीजन बहुत जनरल है, and that is difference in accounting policies. Difference in accounting policies. So sir, difference in accounting policies क्या होता है? It's a general reason. It's a general reason. Any reason where there is a difference in the policies is known as difference in accounting policies, right? Like just take example कि finance WDV method follow करे, costing SLM follow करे, तो इनकी वजह से दोनों के depreciation अलग आएंगे, and there could be difference for reason. सेम वे, अगर फिनांस फीफो फॉलो करे, कॉस्टिंग लीफो फॉलो करे, अगेन देयर कैन बी डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट? सो दैट इज द थर्ड रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड योर कॉस्टिंग. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ डिफरेंस. And that is the fourth reason that we can discuss is under or over absorption. Now, before we actually start with under over absorption, I'll exactly teach you what is absorption. हम एक बार recall लेंगे, भले हमने reconciliation के time पे पढ़ा था. We'll take a recall of absorption and then we'll move to under over absorption. So सबसे पहले what is absorption? Say for example, मेरा एक fixed cost है rent, that is 1 crore rupees. Rent fixed है, it doesn't depend on number of unit, number of student, anything. It's a fixed cost. But at the same time, it goes without saying that we have to be recovering the rent from our students. We have to recover the rent from the students. So the question that arises is, how do we recover the rent? यहाँ पे दो क्वेश्चन है. एक कि अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाए उसके बाद, मतलब ईयर एंड पे अगर कोई मुझे बोले कि सर रिकवर करके दो, इट इज मिनट्स जॉब फॉर मी, कि भाई जो भी एक्चुअल रेंट है 1 करोड़, उसको मैं एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड कर दूंगा, एंड I'll be able to get how to recover rent. But the issue in practical life is you cannot tell this at the end. Effectively, you have to tell the selling price to your customer at the beginning. Yes or yes? जैसे आपने इंटर में एडमिशन लिया होगा तो हमने आपको फीस पहले ही बता दी होगी. हमने पता नहीं था कि कितने हमारे एडमिशन होने वाले, हमें फीस पहले बताना पड़ता है. तो ये एक तकलीफ है कि एक तरफ फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड है, उसका यूनिट से कोई लेना देना रास्ता वास्ता कुछ नहीं.
बट हमें वो फिक्स कॉस्ट उन यूनिट से रिकवर तो करनी होगी, तो कैसे रिकवर करें? तो एक सिंपल सवाल कि सर ईयर एंड पे डिवाइड कर दो, बट वो हो नहीं सकता है क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें पहले दिन एट द बिगिनिंग बतानी होगी, एंड दैट इज व्हाई वी फाइंड एब्जॉर्प्शन रेट सेइंग budgeted overheads divide by, say for example, budgeted number of units. इसकी कुछ मेथड्स हमने पास्ट में पढ़ी है, लाइक नंबर ऑफ एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट. ये अलग अलग मेथड है जो आप चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड्स के अंदर पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो दिस इज बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स. नाउ व्हाट आई विल डू इज I'll say budgeted overheads is 1 crore and divide by budgeted number of unit 10 lakh. और ये आ जाएगा ₹10 per unit. Now having said that, ₹10 per unit, 1 crore divided by 10 lakhs, that is 10 per unit. Now this is my budgeted number of overheads, 10 lakhs, and I have got my absorption rate based on budgeted data. Now budget might not match with actual, and more often than not it does not match with actual. More often than not it does not match with actual. So what is to be done in that case? अब क्या होगा समझो, हमने सोचा था 10 लाख यूनिट बनेंगे, अगर एग्जैक्टली 10 लाख यूनिट्स सेल हो गए तो 10 लाख इंटू 10 1 करोड़ रुपए रिकवर होगा, या तो जिसे हम कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए एब्जॉर्ब्ड होगा. 1 करोड़ विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड 1 करोड़ ऑफ रेंट विल बी पेड. पिक्चर ओवर. 1 करोड़ पे किया, 1 करोड़ रिकवर किया. बट दिस इज इफ actuals match with budget. What if actuals doesn't match with budget? What if actuals doesn't match with budget? In that case, my friends, समझो आपने एक्चुअल रेंट जो पे किया दैट इज 1 करोड़, बट आपने सोचा था 10 लाख यूनिट बनेंगे, बिकेंगे, बट ये कोरोना के चलते चलते इतने यूनिट्स बिके नहीं, बिके सिर्फ 9 लाख यूनिट्स. तो क्या होगा? So 9 lakh units at the rate 10, 90 lakhs आपने रिकवर किया होगा, और 10 लाख रुपीस जो है इसे हम कहते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, या तो इसे हम कहते हैं अंडर रिकवरी, क्योंकि ये आपने कम रिकवर किया, लेस रिकवर्ड. लेस इज कॉल्ड अंडर रिकवर्ड, अंडर एब्जॉर्प्शन, राइट? सो दिस इज एक्चुअल ओवरहेड्स minus absorbed overheads, and this is your under absorption. Now on the other hand, actual overheads, actual rent जो आपको पे करना है, that is 1 crore only. बट से फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 यूनिट बिक गए. समझो आपका मास्क का बिजनेस था, तो कोरोना के चलते मास्क बहुत ज़्यादा बिक गए, 20,000. तो यू डू नॉट रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस कि चलो 1 करोड़ हो गया तो खत्म. यू विल हैव केप्ट योर सेलिंग प्राइस फिक्स. सो 1,20,000 इंटू 10, आई मीन 12 lakhs, सॉरी. तो यू वुड हैव रिकवर्ड 1 करोड़ 20 lakhs. यहाँ पे हाँ बराबर है. सो 12 lakhs इंटू 10, 1 करोड़ 20 लाख. ये 20 lakhs आपने ज़्यादा रिकवर कर लिया. दिस इज माई फ्रेंड्स कॉल्ड ओवर एब्जॉर्प्शन. सो दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन. तो ज़्यादा रिकवर करो दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन, और कम रिकवर करो दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन. तो अब इसको एक फॉर्मुलाइज कर देते हैं. एक्चुअल ओवरहेड्स minus absorbed overheads.
अच्छा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला क्या आएगा सर? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का फॉर्मूला आएगा एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। ये देखो ना, हमने यहाँ पे किया ना सर, 12 लाख एक्चुअल यूनिट्स इंटू 10, 9 लाख एक्चुअल यूनिट्स इंटू 10, सो एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट। और बहुत सिंपल कर देते हैं, दिस इज इफ पॉजिटिव this is under absorption and if negative this is over absorption, right? If positive it is an under absorption and if negative it is your over absorption, and that's how we get it. ठीक है? सो ये 4 मेन रीजन है। पहला रीजन जो हमने पढ़ा दैट वाज फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंसेस। सेकंड रीजन जो पढ़ा दैट वाज स्टॉक वैल्यूएशन। थर्ड रीजन जो हमने पढ़ा दैट इज डिफरेंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। और फोर्थ जो हमने पढ़ा दैट वाज अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। एंड ये अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला तो नहीं बट यू नो एक शॉर्टकट ले लिया कि एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, इफ पॉजिटिव अंडर एब्जॉर्प्शन, इफ नेगेटिव दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन, राइट? Now let's move on to the sums. Okay friends, so let us start with question number 3, and question number 3 goes this way. आपकी बुक में आपको ये पेज नंबर 181 पे मिलेगा, so you got to go to page number 181 in your books and let's read this. So question 3 says, SV Limited has furnished you the following information from the financial books for year ended 30th June 2007. उसमें दिया है P&L account for the year 2007, opening stock 500 units at the rate 35, material consumed, wages, उसके बाद है sales, closing stock and GP. GP का यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। ये एक्चुअली जस्ट इट्स जस्ट अ राउंड ऑफ मिस्टेक, अदरवाइज नथिंग एल्स। सो इसको आप 302 500 कर सकते हो, राइट? यू कैन डू दिस 302 500। और यहाँ पे भी सामने वही आ जाएगा, दैट इज 302 500। नाउ उसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे है जीपी, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड। देन कॉस्ट शीट शोज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स as rupees 26 per unit and labor cost is rupees 15 per unit. तो ऊपर जो डेटा था बेटा that was for costing, sorry that was for finance. जो P&L account आपको दिया था that was for finance, and now they have given you data about costing. So it says that cost sheet shows the following data. Cost of material is rupees 26 per unit. Cost of labor is rupees 15 per unit. The factory overheads are absorbed at the rate 60% of labor cost, and administrative overheads are absorbed
sorry, administrative overheads are absorbed at the rate 20% of factory cost. Selling expenses are charged at the rate 6 per unit. Opening stock of finished goods is valued at rupees 45 per unit. You are required to prepare cost sheet showing the number of units and cost sheet showing number of units produced and the cost of production by elements of cost per unit and total. The statement of profit or loss as per cost accounts for year ended 30th June 2007 and reconcile the profit between the cost and financial accounts, right? So एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉस्ट शीट बना लेते हैं. फिनांस हमारे पास रेडी है, कॉस्ट शीट बना के उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं और उसमें जो डिफरेंस आएगा उसके लिए हम बना लेंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बेटा. So we will say cost sheet for year ending 30th June 2007. उसके बाद quantity of finished goods produced and sold. और इसके लिए रूलिंग कर लेते हैं. ये एक कॉलम आ जाएगी पर यूनिट के लिए और एक कॉलम बना लेते हैं टोटल के लिए. ठीक है, सो पर्टिकुलर टोटल इन पर यूनिट. सोल्ड यूनिट अगर आप यहां से देखो तो आपको P&L से मिल जाएगा दैट 10,250 यूनिट्स हैव बीन सोल्ड, राइट. तो उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्ड यूनिट्स के अंदर. और प्रोड्यूस्ड यूनिट हमें कैलकुलेट करना होगा. सो लेट्स कैलकुलेट प्रोड्यूस्ड यूनिट. आई विल से वर्किंग नोट नंबर 1. Calculation of quantity of finished goods produced. तो बेटा finished goods का quantity कैसे मिले? So you can easily start from sales unit, right? कि भैया हमने कॉस्ट शीट के टाइम पे भी ये देखा था ब्लैक और ब्राउन पॉलिश में कि प्रोड्यूस्ड यूनिट कैसे मिले. तो प्रोडक्शन कितना करना होगा, तो उसका पहला और सबसे बेसिक आंसर है जितना सेल्स हुआ है उतना. तो यह आ गया सेल्स यूनिट 10,250, क्योंकि जितना सेल्स किया है उतना तो प्रोडक्शन किया ही होगा. बट बेटा आपको उसके बाद पता चला कि 250 यूनिट और स्टॉक में पड़े हैं. तो सर वो 250 यूनिट कहाँ से आए? 250 भी प्रोड्यूस किए होंगे तभी तो स्टॉक में आए हैं. तो उसे जरा ऐड कर लेते हैं. ये आपको मिल जाएगा ग्रॉस रिक्वायरमेंट कि भाई 10,250 यूनिट बेचने हैं और 250 यूनिट स्टॉक में रखने हैं या स्टॉक में रहेंगे या रखना चाहते हैं, तो उसे हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और इस तरह से मेरा जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है दैट इज 10,500 यूनिट. बट फिर कोई आके हमें समझाता है कि रुक जाओ सर, इतने यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 500 यूनिट तो आपके ऑलरेडी स्टॉक में पड़े हुए. तो हम कहते हैं ठीक है, इतने यूनिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. एंड हेंस वी से लेस ओपनिंग स्टॉक
दैट इज 500 यूनिट्स और प्रोडक्शन जो आपका आ जाएगा दैट इज 10,000 यूनिट्स. ठीक है. दैट इज 10,000 यूनिट्स. एंड नाउ लेट्स बिगिन विद प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट. तो सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. सर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना होगा? तो ये नहीं देखने का बेटा 2,60,000. नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे भाई फिनांस का डेटा है. आपको तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम कॉस्टिंग का देखना है. और कॉस्ट शीट का डेटा यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज ₹26 पर यूनिट एंड लेबर इज 15. तो बेटा ये आपका फिनांस का डेटा है, सॉरी ये आपका कॉस्टिंग का डेटा है. 26 पर यूनिट एंड 15 पर यूनिट. तो ये आएगा 26. अब इसे मल्टीप्लाई किससे करें? प्रोड्यूस यूनिट से कि सोल्ड यूनिट से? देन ऑब्वियसली सोल्ड यूनिट से. तो ये आ जाएगा 2,60,000 रुपीज. राइट. डायरेक्ट मटेरियल के बाद ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट लेबर. जैसे अभी अभी पढ़ा 15 पर यूनिट, और 15 पर यूनिट के हिसाब से अगर आप 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1,50,000. and this will be coming as prime cost 4,10,000 and 41. उसके बाद आएगा एड फैक्ट्री ओवरहेड्स. कॉस्ट शीट में जैसे हम जानते हैं एब्जॉर्ब लिखा जाता है, क्योंकि कॉस्ट शीट का पर्पज है प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड करना, और प्रोडक्ट की कॉस्ट में तो हमेशा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स ही जाता है. लाइक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस. अभी देखो यहाँ पे बात कर रहे थे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की. तो अगर मैंने एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किया है 10 पर यूनिट मेरी सेलिंग प्राइस में, मेरी प्रोडक्ट में, तो 10 रुपये ही गया है ना. और एक लॉजिकल एंगल से समझो तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि मेरी प्रोडक्ट में 10 रुपये जाएगा. हम तो ये कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में फिक्स कॉस्ट जाए, इसलिए तो हमने 10 का कैलकुलेशन. बाकी 10 का काम क्या था? रेंट. तो आपको फिक्स पे करना ही था. बट माय फ्रेंड्स, हमने ये एब्जॉर्प्शन रेट 10 पर यूनिट फाइंड इसीलिए किया कि वो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में 10 रुपये के हिसाब से जाए. प्रोडक्ट की कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को डालने के लिए तो हमने ये ओवरहेड्स रेट, एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड किया है. और जब हम कॉस्ट शीट सीख के आए हैं, कॉस्ट शीट में पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको ये बात पता होनी ही चाहिए कि कॉस्ट शीट में फिर तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जाएंगे, ना कि एक्चुअल ओवरहेड्स. तो चलो एब्जॉर्प्शन रेट क्या है वो एक बार देख लेते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट द रेट 60% ऑफ लेबर कॉस्ट. ये आपको एब्जॉर्प्शन रेट उसने दे दिया. सो लेट्स चार्ज इट. ये आएगा 60% ऑफ 1,50,000 और ये आपका आ जाएगा 90,000 एंड पर यूनिट में 9. देन you will get factory cost, works cost, and very important, administrative overheads are absorbed at the rate 20% of factory cost. यहाँ पे मैं एक सम को मैं इसको चेंज करा रहा हूँ, क्योंकि आई वांटेड टू बी एज पर द लेटेस्ट ओपिनियन ऑफ ICI. तो यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं, ये जो एडमिन ओवरहेड्स है उसके ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे कि इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. एडमिन के ब्रैकेट में इधर लिख लो दैट इट इज
रिलेटेड टू प्रोडक्शन। बेटा रिलेटेड टू प्रोडक्शन होने से क्या होगा कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन होने से हम मैं इसको यहां पे लिख देता हूं ऐसे, एनीवे सो यहां पे आपका आ जाएगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट? दिस व्हाट दिस मच यू नीड टू चेंज बिकॉज आई एम ट्राइंग टू कीप द सॉल्यूशंस। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऐसे ही रखोगे तो आप इसे COGS के बाद भी लिख सकते हो, बट यू नो पहले जो बहुत पहले की एग्जाम्स में ये सम आए थे तब इंस्टीट्यूट, मैंने आपको पहले समझाया कि इंस्टीट्यूट का पहले ओपिनियन कुछ और था तो वो रखते थे। आई जस्ट वांट टू कीप द सॉल्यूशंस कांस्टेंट, अदरवाइज आप वो ना करो तो कोई नहीं, आप COGS के बाद भी लिख सकते हो। मैं ऐसे सम भी कराऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके बेटा, सो फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, फिर आगे ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो एडमिन का अभी अभी हमने एब्जॉर्प्शन रेट पढ़ा, इट इज 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सो इफ आई से दिस 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट का टोटल लगाना रह गया है, ये आएगा 5,50,000। तो ये आएगा 20% ऑफ 5 lakhs, दिस इज 1,10,000। ये आपको दे देगा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज 6,60,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे लिख लेते हैं स्टॉक। हाँ, एक बार फिर से बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में रिलेटेड टू प्रोडक्शन वर्ड ऐड नहीं करना चाहते हो, हालांकि जो इंस्टीट्यूट के जो रिसेंट स्टडी मटेरियल है उसमें भी उन्होंने वही किया है कि जो पुराने सम थे, जो पुराने एग्जाम से आए थे और वो उन्होंने कैरी किए, उसमें हर जगह पे उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सो दैट इज व्हाट इवन आई एम गोइंग टू डू। अदरवाइज एज वी सेड इन द कॉस्ट शीट, आप उसको बाद में लिख सकते हो अगर वो वर्ड ना हो तो, राइट? तो ये आएगा एड ओपनिंग स्टॉक of finished goods and less closing stock of finished goods। ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखा गया है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज वैल्यूड एट 45 पर यूनिट। ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45 पर यूनिट। तो यहां पे ले लेते हैं 45 और 500 यूनिट ओपनिंग स्टॉक में पड़े हैं। देयर आर 500 यूनिट्स इन द स्टॉक एज यू कैन सी, ये रहा, राइट? 500 यूनिट स्टॉक में पड़ा है। सो 500 इंटू 45 अगर आप करो तो ये आपको स्टॉक दे देगा 22,500। अब सवाल आता है क्लोजिंग स्टॉक का। तो मैंने आपको ब्लैक और ब्राउन पॉलिश के टाइम पे भी कहा था, अभी फिर से दोहराता हूं कि ध्यान रहे, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन कभी नहीं देगा। क्वेश्चन विल नेवर एवर गिव यू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो आपको खुद से वैल्यू करना होता है। जैसे लास्ट जब कॉस्ट शीट वाला पॉइंट हम पढ़ रहे थे, राइट? तो एज आई एक्सप्लेन ड्यूरिंग द ब्लैक एंड ब्राउन पॉलिश सम, बाय डिफॉल्ट हम हमेशा फीफो मेथड फॉलो करेंगे। बेटा फीफो मेथड का मतलब क्या होगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या? मेरे भाई बहन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होगा
कि जो 45 वाले यूनिट्स ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे, दे वर फर्स्ट इन नहीं, वो तो पहले से पड़े थे, वो पहले बिकेंगे, फर्स्ट आउट। तो जो 250 यूनिट आपके स्टॉक में रह गए, ये इन 60 वाले यूनिट से होंगे, और 60 इंटू 215 अगर करोगे तो ये आ जाएगा 15,000 यूनिट, एंड this will give you cost of goods sold, right? ये आ जाएगा 607,500, और ध्यान रहे बेटा 607,500 को आपको सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना है, ना कि प्रोड्यूस्ड यूनिट से। यू हैव टू डिवाइड इट विथ सोल्ड यूनिट्स। सो लेट अस डू दैट। 607,500 divided by sold unit, that is 59.2683. Okay beta, and after cost of goods sold, let's record the last thing, that is selling and distribution overheads. तो कॉस्टिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कैसे लिखे, उसके लिए आपको कहा गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड एट द रेट 6 पर यूनिट, राइट। ये आपको कहा गया है दैट S&D इज रिकॉर्डेड एट द रेट 6 पर यूनिट। तो 6 पर यूनिट के हिसाब से अगर रिकॉर्ड करें तो ये आएगा 6, और ध्यान रहे उसको सोल्ड यूनिट से मल्टीप्लाई करना, ना कि प्रोड्यूस्ड यूनिट से। मल्टीप्लाई विथ सोल्ड यूनिट्स माय फ्रेंड्स। So 6 into 10,250, ये आएगा 61,500, ये आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 607,500 प्लस 61,500, ये आएगा बेटा 669 एंड 65.2683। उसके बाद एड प्रॉफिट और फाइनली सेल्स। सेल्स वही रहेगा जो फिनेंस में है। सेल्स में कोई चीज़ नहीं है और हो भी नहीं सकता है, बिकॉज सेल्स तो जो होता है वही होता है। तो सेल्स आ जाएगा 717,500, और अगर आप प्रॉफिट फाइंड करो तो ये आएगा 48,500, राइट। ऑफ कोर्स अगर आप इसे सोल्ड यूनिट से डिवाइड कर लोगे तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। सोल्ड यूनिट जो आपके हैं दैट इज 10,250, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 4.7317, और सेलिंग प्राइस अगर आपको चाहिए तो 717,500 डिवाइड बाई 10,250, and this will give you, my friends, 70. Now if you see there is a difference, right? If you see, my friends, there is a difference. What is the difference, please? कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है 48,000, सॉरी फिनांस का जो प्रॉफिट है दैट इज 48,000, बट अभी अभी हमने कॉस्ट शीट बनाई और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आ रहा है 48,500, राइट। सो वी हैव टू रिकंसाइल दिस डिफरेंस, we have to reconcile this difference, and let us reconcile this difference. ये ही हमारा reconciliation statement है।
रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाना वो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं, तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। I'll say reconciliation statement। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एक ही कॉलम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, आई मीन दो कॉलम, ओके बेटा। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, सही में कह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखो, हम इस रिकंसिलिएशन को सीखे, इसके पहले जो आप ऑलरेडी सीखे हो उसका नॉलेज यूज़ करते हैं। आप ऑलरेडी क्या सीखे हो? तो आप बेटा, आप ऑलरेडी बनाना सीख चुके हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? तो सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आप क्या करते थे? आप स्टार्ट करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट डेटा यू आर गिवन। जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया जाता था उस हिसाब से आप कैश बुक या पासबुक से स्टार्ट करते थे। सपोज इट, आपने स्टार्ट किया था balance as per cash book. Suppose that you had started from balance as per cash book, then what? समझो बैलेंस एज पर कैश बुक है, whatever, और आपको एक ट्रांजैक्शन दिया गया है, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर। एक मिनट के लिए आप सोचो, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस एज पर कैश बुक और ये ट्रांजैक्शन है चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। अब इसकी इफेक्ट क्या देते? चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। एक मिनट के लिए जल्दी सोचो ना, अब इसकी इफेक्ट क्या देते बेटा? चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, व्हाट इफेक्ट यू विल गिव? ओके, द आंसर इज you would have added आपने ऐड किया होता। क्यों ऐड किया होता? बिकॉज द रीजन इज वेरी सिंपल, राइट? द रीजन इज वेरी ऑब्वियस अबाउट एडिंग। देखो, अब मैं इसके लॉजिक में जाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया लॉजिक है कि जब आपने स्टार्ट किया बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको शायद ये बात पता नहीं होगी, बट मेरे भाई बहन, जब आप कहते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका एक बहुत बड़ा इंटरप्रिटेशन कि जब मेरे भाई बहन आप आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मीन्स you are telling the reader of this financial reconciliation statement that, my friends, you are a cash book. You are doing this from a company's perspective. ये आपको हार्डली पता होगा, बट यही सच है। जहां से आप स्टार्ट करते हो वो आप खुद होते हो। सो अगर आपने स्टार्ट किया है बैलेंस एज पर कैश बुक, इट मीन्स you are telling the reader of this statement कि आप खुद कंपनी हो, इसलिए आपने कैश बुक से स्टार्ट किया है। Now, having said that, why it is important to say that from where you are starting? Because
अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया इसका मतलब आप कैश बुक हो। और बेटा अगर आप कैश बुक हो तो आप सिर्फ अपनी ही बुक चेंज कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। You can, my friends, change only your book. You cannot. What? You cannot. You cannot change the books of bank. No, you cannot, because you are a company. How can you go and say the bank that okay, bank change your book? So now, as an impact, what will happen is, अब वापस आओ इधर कि भैया बैलेंस एज पर कैश बुक है, ट्रांजैक्शन है चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड। चेक इश्यूड का मतलब कि आपने बैलेंस माइनस कर दी बट बैंक ने माइनस नहीं करी है। नाउ डिफरेंस आया। अच्छा, डिफरेंस आया तो दो रीजन है या दो ऑप्शन है। या बैंक को कहो बैंक 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 मेरी बैलेंस कम कर, माइनस कर, क्योंकि मैंने कर दी है। क्या ये लॉजिकल लगता है? नहीं। यू कैन नॉट चेंज द बुक्स ऑफ बैंक। तो आप क्या करोगे बेटा, आप अपनी बुक में वापस ऐड कर दोगे ताकि ये बैलेंस मैच हो जाए, और इस रीजन से आप ऐड करोगे बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। बस यही लॉजिक से यहाँ पे आप प्रॉफिट एज पर फाइनेंस से भी स्टार्ट कर सकते हो और आप प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं आपको कहता हूँ कि गिवन अ चॉइस में हर एक सम में प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग 48,500 से ही स्टार्ट करना पसंद करूंगा। I'll always prefer to start from profit as per costing. Why? Because if I start with costing, it means I'm telling the reader of the statement that okay, I am costing. Okay, I am costing. And if I am costing, I would love to be costing because this chapter is a part of costing. And मुझे पगार, मुझे अपना घर चलाने का पैसा कॉस्टिंग से मिलता है। सो आई वुड ऑलवेज लव टू बी कॉस्टिंग माई फ्रेंड्स। ओके, आई होप दैट लॉजिक इज क्लियर। फिनेंस से स्टार्ट करो, गलत कुछ नहीं है, बट आई वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्टिंग ऑलवेज बिकॉज दिस चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग एंड गिवन अ चॉइस आई वुड लव टू बी कॉस्टिंग ओनली रादर देन बिकमिंग फिनेंस। ओके, उसके बाद एड और लेस। बस अब डिफरेंस के एक रीजन देखते जाओ और देख लो कहां पर डिफरेंस है। फिनेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला, फिनेंस ने जो ओपनिंग स्टॉक लिखा है दैट इज 40,000, सॉरी, ठीक है, तो 17,500 का ओपनिंग स्टॉक कॉस्टिंग ने, फिनेंस ने लिखा है। और अगर हम देखें तो हमारे कॉस्टिंग में तो ओपनिंग स्टॉक है 22,500। अब मैं पहला क्वेश्चन आपको लॉजिकली समझाता हूं। देखो, as I said कि this is really easy। तो अगर हम विजुअलाइजेशन करें, विजुअलाइजेशन नहीं, मैं ड्रॉ ही कर देता हूं, चलो, कि भैया ये फिनेंस का P&L, उसने इधर ओपनिंग स्टॉक लिखा है 17,500 और बेटा ये कॉस्टिंग का P&L और उन्होंने ओपनिंग स्टॉक रखा है या लिखा है 22,500। फिनेंस ने लिखा 17,500, कॉस्टिंग ने लिखा 22,500। ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट साइड पे आएगा। अब इस एक रीजन की वजह से, देयर आर मेनी बट दिस इज वन, इस रीजन की वजह से हमारे फिनेंस और कॉस्टिंग के प्रॉफिट में डिफरेंस है, तो हमें इसको सॉल्व करना होगा। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे सर? ऐसे कर दोगे कि इसको 17,500 कर दिया? नो, अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप ऐसे कर नहीं सकते हो। तो क्या करोगे सर? तो क्या करो सर?
अब एक काम हो सकता है कि या फिनांस में 5,000 डेबिट कर दो या कॉस्टिंग में 5,000 क्रेडिट करो। दो काम हो सकते हैं जिससे दोनों टैली हो जाए। अब ये भी हमने कहा कि बेटा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, इट मीन्स वी कैन ओनली चेंज our book, that is costing box. My friends, we cannot write anything in finance. अगर आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया हो, क्या आप बैंक की बुक में कुछ भी कर सकते हो? नो, नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन नॉट डू दिस। सेम वे कॉस्टिंग P&L से जब आपने कॉस्टिंग से स्टार्ट किया हो तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन फिनेंस बुक, यू कैन ओनली चेंज योर बुक, दैट इज योर कॉस्टिंग बुक। तो हम कॉस्टिंग की बुक में 5,000 ऐड करेंगे। अच्छा मेरा बेटा, अब यहाँ पे कॉस्टिंग का प्रॉफिट पहले से था 48,500, तूने और क्रेडिट किया, इससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? सर प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड। क्रेडिट साइड पे जो लिखा जाएगा उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, सो विल ऐड इट। दैट्स अ सिंपल लॉजिक, राइट? प्योर अकाउंट का लॉजिक है कि अगर आपने प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे है, आप कुछ और क्रेडिट करो, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट मीन्स क्रेडिट मतलब ऐड और डेबिट मतलब लेस। बस इस प्रोसीजर को फॉलो करो, बहुत फास्ट, बहुत क्विक रिकंसिलिएशन चैप्टर आपका हो जाएगा, एंड यू विल गेट 8 मार्क्स लाइक यू विल नॉट इवन रियलाइज। ओके, so let me add this difference in opening stock of finished goods, and that is 5,000। फिर P&L से देखते रहो कहाँ कहाँ पे डिफरेंस है। तो सर मटेरियल में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं है। जीपी बेटा जीपी लिखा नहीं जाता है क्योंकि जीपी तो आमने सामने क्रॉस आउट हो जाता है, राइट। ये जीपी अगर आप देखो तो जीपी यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ ब्रॉट डाउन एंड कैरिड फॉरवर्ड गया, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में डिफरेंस है। मैं पूरी डेबिट साइड पहले खत्म कर लेता हूँ। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स फिनेंस ने लिखा है 94,750, तो ये लिखता हूं बेटा FOH। फिनेंस ने लिख दिया 94,750। कॉस्टिंग ने कितना लिखा? तो सर हमारी कॉस्ट शीट देखते हैं। कॉस्ट शीट ने फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट साइड पे लिखा है 90,000 रुपीज। अब क्या करो? तो जैसे बताया सर सिर्फ हमारी कॉस्टिंग की बुक्स चेंज कर सकते हो, तो यहां पे आएगा 4750, राइट। और 4750 अगर कॉस्टिंग की बुक में डेबिट करोगे तो उससे प्रॉफिट कम होगा, इसलिए आपको उसे लेस साइड पे लिखना चाहिए। और अगर इसका नाम ढूंढो, सो दिस इज एक्चुअल ओवरहेड्स। ये देखो, एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब्ड, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन, और दिख भी रहा है कि एक्चुअल है 94,750, आपने रिकवर किया 90, दैट मीन्स इट इज अंडर एब्जॉर्ब, आपने कम रिकवर किया है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैं लिख लेता हूँ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड दैट इज 4750। आगे बढ़ते हैं बेटा, एडमिन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई एडमिन क्या कह रहा है। तो एडमिन हमें कह रहा है, ओके मैं ये काम पे आ गया। एडमिन जो एक्चुअल है वो है 1,06,000,
और अगर आप कॉस्टिंग में देखो तो कॉस्टिंग में, इसको बंद ही कर देता हूँ इस विंडो को, या कॉस्टिंग में अगर आप कॉस्ट शीट देखो तो लिखा है 1 लाख रुपीस। ठीक है, फिर से इसकी इफेक्ट देखते हैं यहाँ पे। के फिनेंस ने लिखा 1,06,000, कॉस्टिंग ने लिखा 1 लाख। तो अब क्या करो कि 6,000 फिर से कॉस्टिंग की बुक में डेबिट कर दो, और डेबिट करने से आपको करना होगा लेस। और फिर से एक बार अगर नाम जान लो तो 1,06,000 माइनस 1,06,000 डेबिट, और ये अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा। तो फिर से इधर लिख लेते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड्स, and that is 6,000 rupees. Okay beta, then let's go to the next one. Next one is selling expenses 55,000, और कॉस्टिंग में अगर आप देखो तो कॉस्टिंग ने लिखा हुआ है 61,500, ये रहा 61,500। तो इसकी इफेक्ट चेक कर लेते हैं। फिनेंस ने लिखा है 55,000, कॉस्टिंग ने लिखा है 61,500। यह है ओवर एब्जॉर्प्शन, आपने ज़्यादा लिख दिया। और इफेक्ट क्या देनी होगी सर? तो 6,500 आपको कॉस्टिंग में क्रेडिट करना होगा ताकि ये दोनों मैच हो जाए, और क्रेडिट करने से होगा ऐड। तो ऐड साइड पे लिख दें। हम ऐसे बहुत सारे सम करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, डोंट वरी, यू विल गेट एब्सोल्युटली ऑफ दिस, राइट। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बट स्टिल ऐड आ जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड दैट इज 6,500। फिर फिनेंस अगर देखें तो नेक्स्ट दो चीजें, दैट इज बेड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अच्छा, बेड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिनेंस ने लिखा बट कॉस्टिंग ने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल इनकम और एक्सपेंस, जो कॉस्टिंग नहीं लिखता और कॉस्टिंग को लिखना भी नहीं चाहिए। सो इफ इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, माय फ्रेंड्स, देन व्हाट विल हैपन? वी विल से कि दोनों फिनेंस ने लिखे हैं डेबिट साइड पे, हमने नहीं लिखे, तो अब हमें डेबिट करना होगा ताकि प्रॉफिट टैली हो जाए, प्रॉफिट मैच हो जाए। और जब डेबिट करोगे तो प्रॉफिट को करना होगा लेस, और लेस के लिए हेडिंग लिख लेते हैं पहले, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। और उसमें आएगा दो चीजें, बेड डेट्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेड डेट्स है 4,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000। तो ये आ जाएगा आपके लिए 9,000 रुपीज। ठीक है, Now let's go to the credit side. Debit side is all done and dusted. Credit side में सेल्स में कोई फर्क नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में वापस फर्क है। क्लोजिंग स्टॉक फिनेंस ने लिखा है 12,500, और कॉस्टिंग अगर हम देखें तो कॉस्टिंग ने लिखा है 15,000। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसकी इफेक्ट क्या आएगी। सो लेट अस चेक इट। क्लोजिंग स्टॉक फिनेंस ने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड फिनेंस की, ठीक है बेटा, लिखा 12,500। कॉस्टिंग ने सर
लिख दिया 15,000, कॉस्टिंग ने क्रेडिट साइड पे ज़्यादा लिखा, तो अब इसको टैली कैसे करोगे? तो अगर 2,500 डेबिट करो तो टैली होगा बेटा, और अगर 2,500 डेबिट करो तो लेफ्ट साइड पे आएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक of finished goods, or that is 2,500. एंड उसके बाद क्रेडिट साइड पे और दो चीज़ें हैं, इंटरेस्ट 250 एंड रेंट रिसीव 10,000। दोनों की दोनों इनकम फिनेंस ने क्रेडिट की है, बट कॉस्टिंग ने क्रेडिट नहीं किया, तो आपको वो सब क्रेडिट करना होगा। फिनेंस करे क्रेडिट, कॉस्टिंग ने कुछ नहीं किया तो कॉस्टिंग में क्रेडिट करो। क्रेडिट का मतलब ऐड, बट सीधा ऐड मत करना, हेडिंग प्रॉपर्ली लिखना। हेडिंग लिखेंगे फाइनेंशियल इनकम्स नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। एंड उसमें आएगा दो चीज़ें, इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट है 250, ये 10,000, ये आएगा 10,250। अब इसका टोटल कर लेते हैं और चेक करते हैं कि भैया टैली हो रहा है कि नहीं हमारा। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग, यहाँ से लेके इन सब का टोटल लगा देंगे, दैट इज टोटल नंबर 1। सो लेट अस चेक। $48,500 प्लस 5,000 प्लस 6,500 प्लस 10,250, तो ये आएगा 70,250। और फिर ऐसे ये लेफ्ट साइड का टोटल लगाएं, दैट इज 2। तो ये आ रहा है 4,750 प्लस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 2,500, तो ये आ रहा है 22,250। एंड फाइनली इफ आई डू 1 minus 2, दिस इज 48,000। और अगर आप फिनेंस का प्रॉफिट देखो, दैट इज 48,000, मीन्स वी हैव बीन एबल टू टैली द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग से स्टार्ट किया, प्रॉफिट एज पर फिनेंस आ गया, सो दैट इज सुपर्ब। इसके सामने लिख लेते हैं प्रॉफिट एज पर फिनेंस, राइट माय फ्रेंड्स। सो दिस इज हाउ we can get this sum done. अब नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 goes this way, my friends. Question 4 says the following figures have been extracted from the financial account of a manufacturing firm for the first year of its operation. देखो, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, इसका मतलब कि आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट ईयर। सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। उसमें दिया है कि डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख, डायरेक्ट वेजेस 30 lakhs, फैक्ट्री ओवरहेड्स 16 lakhs, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 7 lakhs, selling and distribution overheads 9,60,000. Then we are given bad debts 80,000, preliminary expense written off 40,000. Then rent received 10,000, dividend received 1 lakh, interest on deposit received 20,000, sales
1 crore 20 lakhs, closing stock finished goods 4,000 units, and WIP 2 lakh 40,000 units. The cost accounts for the same period reveal that direct material consumption was rupees 56 lakhs and factory overheads is recovered at the rate 20% of prime cost. ये आपको absorption rates दे रहे हैं, right? Administrative overheads is recovered at the rate 6% of production, and selling and distribution overheads are recovered at the rate 8 per unit sold. You are required to prepare the costing and financial P&L and reconcile the difference and profits arrived in the two sets of account. तो यहाँ पे हमें सब कुछ करना है. हमें फिनेंस का प्रॉफिट भी फाइंड करना है, हमें कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी फाइंड करना है और रिकन्सिलेशन भी बनाना है. तो सबसे पहले फिनेंस के प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं. एक साथ ही बनाएंगे कि भैया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. अलग अलग जीपी ये वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है. सब कुछ डेबिट साइड पे लिखते जाओ, सब कुछ क्रेडिट साइड पे लिखते जाओ, जो डेबिट और क्रेडिट साइड की चीजें हैं, और सीधा नेट प्रॉफिट फाइंड कर लो. दैट विल डू द जॉब इन दिस चैप्टर. Okay, beta. I think it is not drawn. So let us start, with this sum. ये सारा डेटा फिनेंस का है. आपको सिर्फ इतना ही करना है, यही सोचना है कि क्या डेबिट साइड पे आएगा, क्या क्रेडिट साइड पे आएगा, और उसे डेबिट और क्रेडिट साइड पे लिख दो. योर जॉब इज ऑल डन. तो पहला है डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, डेबिट साइड पे आएगा. डायरेक्ट वेजेस 30 लाख डेबिट साइड पे आएगा. FOH, एडमिन, SND, बेड डेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, ये सब कुछ आएगा डेबिट साइड पे. तो चलो उसे लिख लेते हैं. डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन से स्टार्ट करते हैं बेटा. तो डेबिट करते हैं 2 डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 50 लाख, डायरेक्ट लेबर 30 lakhs, to factory overheads 16 lakhs, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स 7 lakhs, to selling and distribution overheads 9,60,000. Bed debts and preliminary expenses 80 and 40,000.
फिर नेक्स्ट रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव, ये तीनों क्रेडिट साइड पे आएंगे, मगर इसे रिकॉर्ड करने से पहले डेबिट साइड पे, सॉरी क्रेडिट साइड पे ऊपर से थोड़ा लाइन सेल्स और उसके लिए छोड़ देना, फिर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। पहला था रेंट रिसीव्ड, that is 10,000 by dividend received one lakh or interest on deposit received 20,000. उसके बाद सेल्स है 1 करोड़ 20 लाख, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाई सेल्स 1 करोड़ 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में दो है, फिनिश गुड 3,20,000 और WIP 2,40,000। सो ये आपको दे देगा 5,60,000। और चलिए इसके हिसाब से हम नेट प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट आपको अच्छा यहाँ से प्लस माइनस करके फाइंड करना होगा। सो इफ आई स्टार्ट टोटलिंग दिस, ये आएगा 1 करोड़ 20 लाख प्लस 560, ये 1 करोड़ 20 लाख प्लस 5,60,000 प्लस 1,30,000, तो ये आएगा 1 करोड़ 26,90,000। और उनमें से अगर ये सब माइनस करते जाए तो ये 50 प्लस 30 प्लस 16 96 लाख, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 13,10,000 रुपीज़। और ये ऑफ कोर्स आ जाएगा 1 करोड़ 26,90,000। ठीक है बेटा। नाउ देयर इज सम होमवर्क फॉर यू बिफोर आई वाइंड अप दिस सेशन। सो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको इस सम में, यहां पे लिखा हुआ है सब कुछ। हाँ, एक और बात यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं बिफोर यू गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पे सर एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि जनरल है, तो इसका आंसर है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इज रिकवर्ड एट द रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर कट उन्होंने लिखा ही है कि 6 per unit of production. So when they write it clearly that 6 per unit of production, then the question does not arise that whether it is related to production or whether it is
जनरल, इट डज नॉट अराइज, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट. अगर वो जनरल होता तो सोल यूनिट से डिवाइड या मल्टीप्लाई या एब्जॉर्ब या रिकवर होता. जबकि यहाँ पे जब क्वेश्चन ने कहा है कि 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब कि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आपको कॉस्ट शीट इस सम की बनानी है और फिर ही आपको आगे इस वीडियो को लेके जाना है. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, बट आप जब तक कॉस्ट शीट ना बना लो तब तक इस वीडियो को आगे मत ले जाना बेटा. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. हेडिंग आ जाएगा कॉस्ट शीट फॉर द ईयर. Quantity of finished goods produced and sold. ये आएंगे यूनिट्स एंड यूनिट्स. ओके, तो सोल्ड यूनिट जैसे हम देख रहे हैं या देखा हमने BNM में, दैट इज 1,20,000 यूनिट. और इस सम में कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस इज फर्स्ट ईयर. सोल्ड यूनिट से 120 और प्रोड्यूस्ड आई मीन क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं 4,000, कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो ये हो जाएगा 124. अब इसकी रूलिंग कर लेते हैं. So फिर से वापस वही दो कॉलम. ये आएगा टोटल एंड पर यूनिट. This has actually started sticking with it. It is hanged. Just give me a moment guys, it is hanged. Right, तो अब ये बन जाएगा total and per unit. So let's start. कॉस्ट शीट बनाना शुरू कर दें. कॉस्ट शीट का अगर देखना डेटा स्टार्ट करें तो कहा गया है द कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंट फॉर द सेम पीरियड रिवील दैट डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन वाज 56 lakhs. So let's start with that. हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन 56 lakhs और इसे प्रोड्यूस यूनिट से डिवाइड कर दो. तो ये आ जाएगा 45.1613. उसके बाद डायरेक्ट लेबर के लिए आपको कुछ कहा नहीं गया है अलग से, तो वो हो जाएगा सेम एज फिनांस. ज़ीरो नहीं होता है, सेम एज फिनांस होगा. फिर अब 30 lakhs डिवाइड बाई 1,24,000 यूनिट अगर आप करो तो ये आपको देगा 24.1935. दोनों का टोटल लगा लो, ये आपको देगा प्राइम कॉस्ट. ये आएगा 86 lakhs और 86 lakhs को 124 से डिवाइड कर दो. तो ये आपको देगा
69.3548। उसके बाद आगे कर देते हैं ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो इफ आई डू दिस, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपको कहा गया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट द रेट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो ये आ जाएगा 20% ऑफ 86 लैक्स, दिस इज 17,20,000। और 17,20,000 को अगर हम प्रोड्यूस्ड यूनिट से डिवाइड करें तो ये आपको देगा 13.8710। फिर से इसका एक टोटल लगा लें, बट अब आपके सम में WIP है तो इसको हम कह देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट, और ये आ जाएगा 86 लैक्स प्लस 17,20,000। So that is 1,03,20,000 divided by 1,24,000 यूनिट करो तो ये आपको देगा 83.2258। अब WIP स्टॉक लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP दैट इज nil लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो WIP आ जाएगा सेम एज फाइनेंस। जो है 2,40,000 रुपये, तो दिस इज 2,40,000 रुपीज़। WIP कभी पर यूनिट में लिखा नहीं जाता है, सो ये आएगा आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट दैट इज 1,00,80,000। और इसका अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें सो ये आपको देगा 81.2903। उसके आगे कर देते हैं ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स के लिए आपको कहा गया है 6 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। खास ध्यान रहे प्रोडक्शन लिखा है, इसके लिए हम यहाँ पे बिफोर लिख रहे हैं, अदरवाइज वी वुड हैव रिकॉर्डेड इट आफ्टर। तो 6 × 124 करो, ये आ जाएगा 7,44,000। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,08,24,000, and if we do that divide so ये हमें देगा 87.2903। इसके आगे कर देते हैं ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये वापस nil लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, ये बात खास ध्यान रखना, अभी अभी हमने ना WIP सेम एज फाइनेंस लिख दिया, हालांकि वो लिखना नहीं चाहिए। तीनों के तीनों स्टॉक, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो या फिनिश गुड्स हो, तीन में से कोई भी स्टॉक आपको सेम एज फाइनेंस नहीं लिखना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। बट हमने WIP स्टॉक लिखा सेम, क्यों? क्योंकि सर मजबूरी थी।
सर क्या मजबूरी थी? सर WIP स्टॉक वैल्यू तो हम कर सकते हैं, करना चाहते भी है, चलो कर भी लेते हैं, बट सर कैसे करें सर? ना हमारे पास यूनिट्स है WIP के, और ना हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ना स्टेज ऑफ कंप्लीशन है ना यूनिट्स है, तो हम WIP कैसे वैल्यू करें? हमारे पास डेटा नहीं था। फिर से कहता हूं सर, दो मजबूरी थी WIP के लिए। एक स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं था और एक हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट नहीं था। इन दोनों के बिना WIP वैल्यू करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बट दोस्तों, आप ये सोचो कि फिनिश गुड्स में इनमें से कौन सी मजबूरी आपके सामने है? एक भी नहीं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमेशा 100% ही होता है, और यूनिट आपको पता है कि 4000 यूनिट से व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सो यू कैन नॉट राइट FG सेम एज फिनिश गुड्स, सेम एज फिनांस। FG जैसे हम समझ रहे हैं, आपको यहाँ पे वैल्यू करना होगा, दिस इज 87.2903, और अगर उसको मल्टीप्लाई करो बेटा तो ये आएगा 4000 यूनिट से अगर मल्टीप्लाई करो तो 87.2903 इंटू 4000, ये आपको मिलेगा 349161। इसे माइनस कर लो तो ये आपको देगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आएगा 1,08,24,000 माइनस 349161, तो ये आएगा 1,04,74,839। और अब जो भी करो वो सोल्ड यूनिट से डिवाइड करना, तो ये वापस आपको देगा 87.2903। COGS के बाद ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपको कॉस्टिंग का अगर डेटा देखो तो लिखा हुआ है कि 8 पर यूनिट सोल्ड, तो 8 पर यूनिट सोल्ड के हिसाब से आ जाएगा 9,60,000। So my friends, this will give you cost of sales, उसके आगे add profit, और finally sales. I'm really sorry, I don't know what has happened actually. Yeah, all fine. तो sales आपका आ जाएगा 1,20,00,000 और ये 100। प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करें, तो ये आएगा 1,14,34,839, और ये प्रॉफिट आपका आ जाएगा 565,161। और अब बना लेते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बहुत जल्दी से, और फिर इस सेशन को आज खत्म करेंगे। So as I said in the first sum, हम हमेशा के लिए स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एज पर
कॉस्टिंग से। सो मेरा प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग है 565161। उसके बाद कुछ चीज़ें 10 लाइन के लिए ऐड के लिए छोड़ देते हैं और फिर लेस कर देते हैं। अब ऐड लेस क्या होगा, देखो डिफरेंस देखते जाते हैं। मटीरियल में ही पहला डिफरेंस है। मटीरियल फिनांस ने डेबिट किया 50 लाख, फिनांस ने डेबिट किया 50 लाख, कॉस्टिंग ने डेबिट किया 56 लाख। ये रहा। सो अगर आप हमारा वो स्टेटमेंट वाला बात समझो तो ये फिनांस, ये कॉस्टिंग। फिनांस ने डेबिट किया 50 लाख, हमने किया 56 लाख। हम सिर्फ कॉस्टिंग की बुक चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम कॉस्टिंग है तो यहाँ पे कर देते हैं 6 लाख क्रेडिट, और क्रेडिट करने से प्रॉफिट होगा ऐड। तो ऐड करते हैं डिफरेंस इन मटीरियल कंज्यूम्ड, ये आएगा 6 लाख। फिर आगे बढ़ते जाओ, फिनांस का पीएनएल देखते जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने लिखा 16 लाख फिनांस ने, कॉस्टिंग ने लिखा 17 लाख 20 हज़ार, तो 16 लाख और 17 लाख 20 हज़ार। पहले इसका नाम पता लगा लो कि एक्चुअल माइनस एब्जॉर्ब, ज़्यादा रिकवर किया, दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन। और सेम करने के लिए 1,20,000 करना होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,20,000। फिर फिनांस में अगर नेक्स्ट देखो तो एडमिन है 7 लाख और हमने लिखा है 744, तो फिनांस ने लिखा 7, हमने लिखा 744। 44,000 को करते हैं क्रेडिट, राइट। और ये ओवर एब्जॉर्प्शन है, क्रेडिट मतलब ऐड। तो फिर से आ जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिन ओवरहेड्स 44,000। एसएनडी 960 और 960 एसएनडी में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर ये दो चीज़ें डेबिट और है, जो फिनांस ने किया कॉस्टिंग ने नहीं किया। तो अब कॉस्टिंग में डेबिट करोगे तो लेस होगा। तो इसका हेडिंग लिख लेते हैं फिनेंशियल एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। सो ये आएगा बेड डेट्स, एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और इसकी अमाउंट अगर आप देख लो, सो दैट इज 80,000 एंड 40,000। सो ये आएगा 1,20,000। फिर आगे ये 3 इनकम है, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ये तीनों फिनांस ने क्रेडिट किया, कॉस्टिंग ने नहीं किया क्रेडिट। कॉस्टिंग में क्रेडिट करो, क्रेडिट करने से प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब ऐड साइड पे जाएगा। तो मैं ऐड साइड पे लिख लेता हूँ financial incomes not recorded in cost. और उसमें 3 चीज़ें आ जाएगी, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड आपको कहा गया है 10,000, डिविडेंड रिसीव्ड 1 lakh and interest on deposits received, that is 20,000. सो ये आ जाएगा 1,30,000। और फिर सेल्स में कोई फ़र्क नहीं, फिनिश गुड्स में फ़र्क नहीं, सॉरी WIP में फ़र्क नहीं, फिनिश गुड्स में फ़र्क है। फिनिश गुड्स में क्या फ़र्क है एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिनिश गुड्स फिनांस ने लिखा 320, कॉस्टिंग ने लिखा 349,161।
अब इसको डिफाइन सॉल्व करने के लिए डेबिट करना होगा 29161, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इधर डेबिट कर दो तो फिनांस के क्रेडिट साइड पे नेट बचेगा 320 और कॉस्टिंग के भी क्रेडिट साइड पे 320 और आपका प्रॉफिट टैली हो जाएगा। ठीक है, तो डेबिट मतलब लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 29161, इसका टोटल लगा लेते हैं 149161, इसका टोटल लगा लेते हैं दैट इज 1, सो लेट मी टोटल इट अप 565161 प्लस सो ये आ रहा है हमारा 14,59,161 और उनमें से अगर ये डेबिट करो 149161 तो 1 माइनस 2 जो आपका बच रहा है दैट इज 13,10,000 जो फिनेंस का प्रॉफिट है आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब हमारा रिकंसिलिएशन टैली हो गया, तो ये आ गया प्रॉफिट एज पर फिनेंस। एंड इसके साथ ये सम और ये सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.